Next question on isometric view. If you observe this question, here two views are given. Like for this question, front view and right hand side view was given, right? In this question, front view and top view is given. Is it clear? Now just observe where is point O towards right. So left side में dimension है ना? So this front view will be drawn on which plane? Left plane. Okay. So we will calculate maximum length, width and height. So I will select first. I will turn off isometric snap. Orthographic mode में I will select projection layer. Click on this text and draw a box over here. Then write down length into width into height equal to. Okay, now what is the length from this point to this point? 100, and here radius is 30, so 130. Length is 130 into width. Width we can see in which view? Top view. In top view, what is the total width? Radius is 30, so diameter कितना रहेगा? 60. So width is 60 into height. Height we can see in front view. What is the height? 50 millimeter. So height is 50 escape. Now once this is known, and we already know that O is towards right, no? Means front view is towards left side. पूरा dimension left में जा रहा है, तो left plane will contain the length and right plane will contain the width. So we will draw that now. I will turn on, ortho mode is already on, turn on isometric snap. Okay, projection layer is on, L enter. Okay, I will change the plane, press F5, right plane है, again F5, left plane. Okay, then from this point, what is the distance? Length 130, we have written here. Height कितना है? 50, so 50, again 130 and then 50. Then press F5. We have moved towards right now. What is the width? 60. So 60, enter. Press F5. Now we can give the height. Height is how much? 50. And again width is how much? 60. Then press escape. Again L, enter. And we are in top plane, so press F5. Again F5. This is top plane. Okay. What is the length? 130. So 130, enter. And what is the width? 60, na? So 60, enter. So we have completed the box. Now again I will come out of the isometric snap line, and from here I will draw a line, go to the text and write here the name O. Then show the angles. Go to angular, show this angle 30 degree. Okay, show this angle as 30 degree. Okay, now O is here and front view we have to draw on this side, right? So we will analyze the given figure. Just observe the cursor. If I start from this side, this is vertical, then horizontal, then vertical, like this. This is the shape and this is a single shape. इसके बीच में कहीं पे भी dark line नहीं आ रहा है, मतलब ये पूरा एक plane पे रहने वाला है. And यही top view में if you take projection, like ये point का नीचे line draw करते हुए आओगे ये मिलेगा, और ये point का line नीचे draw करके आओगे तो ये मिलेगा. तो basically ये पूरा जो shape है, ये जो shape है वही ये ऐसे बन रहा है. Okay, so what I am going to do, I will be starting from the top plane. Top plane मतलब ये वाला portion. Top plane में ये एक semi circle है और ये एक circle है. Now what is the distance of this center? ये point से इसका radius कितना है? 30. तो ये center कितने पे मिलेगा यहाँ से? 30. So what I am going to do, understand? I will turn on isometric mode. CO, enter. Select object, enter. And from this point I will move in this direction. कितने distance है? 30. So 30, enter. Now on this line I will get the center of this circle, जहाँ पे भी triangle आएगा. So I have already given you in writing, whenever there is a circle, we have to draw, we have to use ellipse command and then iso circle in case of isometric view on AutoCAD. So what is the outer radius? 30. So see how we are going to draw. First I will select outline, then I will type EL, enter. Then I will click on iso circle and then ये triangle पे click किया. अभी ये देखो ये top plane है ना, तो top plane पे ही बनाना है हम लोगों को. If I press F5,
ये राइट प्लेन है, दिस इज लेफ्ट प्लेन, आई वांट टॉप प्लेन, सो अगेन आई विल प्रेस F5. Okay, what is the radius? 30, so 30, enter. Then this is a semicircular part na, so rest of the portion I need to trim, so TR double enter, trim this part. Is it clear? अभी इसके बाद what is the diameter of inner circle? 30, तो radius कितना रहेगा? 15. So again EL enter, click on isocircle, select the center, and radius is how much? 15. So 15, enter. Now what I have drawn this circular semicircular part on the top plane. वैसे semicircular part throughout the height है ना नीचे 50 तक, so I will copy it down by a height of 50. So CO enter, select object, enter. From this point I am going to, or from the center I am going to copy it. So from center, right now I am in top plane ना, I will come in which plane? Left plane. So F5 प्रेस करके लेफ्ट प्लेन में आए, या फिर राइट प्लेन में भी चलेगा. ओके, तो इसको राइट प्लेन में ही रखा है अभी मैंने. नीचे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50. So 50, एंटर. यू कैन सी ऑटोमेटिकली दिस टचेस द बॉटम रेक्टेंगल. ओके, इतना होने के बाद आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन हियर. सो आई विल सिलेक्ट लाइन. यहाँ पे आई नीड टू सर्च क्वाड्रेंट. Quadrant is indicated by a diamond shape. So I will click here and I will search diamond here and I will click here. Rest of the inner portion I am going to trim. So TR double enter, trim this part and delete this part. Okay, so this portion I have drawn. Next, from bottom I have completed till here. Okay, अभी इधर से ये distance कितना है? 100. So I will draw that. L enter and change the plane. F5 100, enter. आया इधर. अभी इधर से कहाँ पे जाना है? ऊपर. अभी यहाँ पे ये डायमेंशन दिया नहीं है, बट बाय जजमेंट यू कैन अंडरस्टैंड. ये हाइट कितना है? 10, और ये उतना ही दिख रहा है देखो, तो टोटल कितना रहेगा? 20. सो फ्रॉम हियर आई विल मूव अप. कितना ऊपर जाना है? 20. सो फ्रॉम हियर 20, एंटर. ऊपर आ गए. अभी उधर से लेफ्ट में कितना है? 10. सो लेफ्ट साइड 10, एंटर. देन बॉटम साइड जाना है. अगेन कितना है? 10. ये दिया नहीं है यहाँ पे बाय जज. सी दिस एंड दिस यू कैन सी इट इज सेम, तो उससे हम लोगों ने अज्यूम किया है. सो दिस विल बी अगेन 10 एंड इधर से फिर पूरा इधर तक लाइन आएगा. सो रैंडमली आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस एंड देन फ्रॉम हियर ऑल्सो आई विल ड्रॉ अ रैंडम लाइन लाइक दिस. और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा बाकी का पोर्शन ट्रिम करना है. ये और ये पोर्शन ट्रिम किया, तो नो नीड टू यूज एनी डायमेंशन. ओके, नाउ वंस वी हैव ड्रॉन दिस पार्ट, ये हम लोगों ने शेप ड्रॉ कर लिया. देखो अभी क्या करना है. इफ यू सी द टॉप व्यू में जस्ट फॉलो माय कर्सर. ये देखो ये वाला जो पोर्शन है इसके बीच में कोई भी डार्क लाइन नहीं, एंड इसका ही अगर प्रोजेक्शन लेके जाओगे, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन देखो इधर आ रहा है और ये पॉइंट का प्रोजेक्शन इधर आ रहा है, मतलब नीचे से 50 के हाइट पे आ रहा है ना. मतलब ये पूरा जो दिख रहा है ना शेप, ये टॉप प्लेन पे. ओके, तो अभी इधर से ये डिस्टेंस कितना है? 25. सो आई विल गो टू द ड्राइंग. L एंटर. फ्रॉम हियर टूवर्ड्स राइट 25, एंटर. देन इधर से अंदर ये डिस्टेंस कितना रहेगा? दिस टोटल इज 60 एंड दिस इज 40 एंड डायग्राम इज सिमेट्रिक. तो 60 माइनस 40 20, तो ये 10 रहेगा और ये 10 रहेगा. तो इधर से अंदर कितना जाना है? 10. सो फ्रॉम हियर आई विल चेंज द प्लेन. F5, ये डिस्टेंस हुआ 10, एंटर. देन नेक्स्ट ऑब्जर्व, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस इज 25. ओके, मतलब इधर से लेके इधर तक, नहीं इधर तक, फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट व्हाट इज द डिस्टेंस? 25. और इधर से इधर कितना है? 35. तो आई हैव ऑलरेडी रीच्ड हियर ना, तो इधर से ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 35 माइनस 25, 10. तो फ्रॉम हियर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 10. तो अभी 10 से हम लोग आगे आएंगे. कर्सर ऐसे रखो, 10, एंटर. इधर आ गए. नेक्स्ट व्हाट इज दिस? 40. तो इधर से 40, एंटर. देन वापस पीछे 10, एंटर. वापस ये साइड में 10, एंटर. और पीछे कितना था? 25, एंटर. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. कौन सा पार्ट? ये वाला पोर्शन. ये कैसे पता चला ये पोर्शन ऊपर बनेगा नीचे नहीं? बिकॉज इफ यू सी दिस, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन लेके जाओगे इधर आ रहा है, तो ये इधर से नीचे से ऊपर 50 हाइट पे है ना, तो ये पूरा ड्राइंग टॉप प्लेन पे बना है 50 हाइट के ऊपर.
ओके देन नेक्स्ट जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है, ये वाला लाइन ये है ना, ये वाले लाइन से इधर तक डायरेक्ट इंक्लाइन आ रहा है और ये जो स्लॉट है ये इंक्लाइन के अंदर है। तो बेसिकली आई नीड टू ड्रॉ दिस इंक्लाइन लाइन फर्स्ट। तो इधर तक आ गए, इधर से इधर मेरे को ज्वाइन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी देखो क्या करना है, इधर से जब मेरे को इधर ज्वाइन करना है, ये पॉइंट इधर है, तो इधर से ये अंदर डिस्टेंस कितना है 10। ओके तो आई नीड टू मूव इनसाइड बाय डिस्टेंस ऑफ 10। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो एल एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल मूव इनसाइड, कितने डिस्टेंस से 10 एंटर, और इधर से प्रेस F5, नहीं इधर से नहीं, एक मिनट, सी ये डिस्टेंस कितना है 10 है। ओके तो हम लोग अभी ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट, इधर से अभी राइट में जाना है, राइट में जाना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 10 है। सो आई एम गोइंग टू यूज प्रोजेक्शन लेयर बिकॉज आई एम अनश्योर राइट नाउ। तो इधर से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से, हाँ वन मोर थिंग, ये पूरा लाइन दिख ही रहा है ना, तो पूरा डार्क ही आने वाला है बिकॉज सी दिस लाइन इज इंडिकेटेड बाय दिस पॉइंट इफ यू सी द प्रोजेक्शन, तो पूरा डार्क ही आने वाला है। सो आई कैन सिलेक्ट आउटलाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट वाज द विड्थ, सॉरी विड्थ थी ना 60, तो यहाँ पे 60 एंटर करो, आ गया इतना, और ये भी नीचे डार्क रहेगा। इतना हाइट कितना था ये 20, सो 20 एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट आई विल ज्वाइन। ओके अभी मेरे को बोलो, देखो इधर से अंदर कितना है, ये डिस्टेंस 10 है, उसके पहले ये देखो ये कुछ दिख रहा है ना ऐसे, ये लाइन का भी ये पॉइंट है। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सिलेक्ट दिस सी, along with that I will select this also। तो ये और ये मैंने सिलेक्ट किया, नहीं तो ये करते सिलेक्ट दिस CO एंटर, दिस इज द बेस पॉइंट, इसको पिकअप करके यहाँ पे रखो। ओके देन L एंटर, ज्वाइन दिस। ओके ये जो बना है मैंने, मीन्स आई हैव रीच्ड टिल हियर। ओके आगे के साइड में यहाँ पे आई हैव रीच्ड, मतलब यहाँ पे मैं पहुंच गया। अभी इधर से अंदर जाना है मेरे को, अंदर कितना डिस्टेंस जाना है 10। So I will select projection layer, L enter, from this point I will move in inward direction, कितने distance से 10। Okay same way from here also 10, and then simply I will join this point with this point, because देखो यहाँ पे ये 10 है ना, वैसे ये भी 10 है, same way ये 10 है और ये भी 10 है। तो basically if I join this, यहाँ पे I will get an inclined plane। कौन सा वाला inclined plane, इधर से इधर तक। ओके सो वी विल गो बैक टू द ड्राइंग, आई विल ड्रॉ द इंक्लाइन प्लेन। अभी वो इंक्लाइन प्लेन देखो पूरा डार्क है, तो आउटलाइन में ही जाना है हम लोगों को। आई विल कीप दिस एज आउटलाइन एंड ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, इधर इधर नहीं ना, इधर, लाइक दिस, सेम वे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आई विल ज्वाइन। इज इट क्लियर? क्यों ये इधर से क्यों नहीं है, बिकॉज देखो ये 10 डिस्टेंस दिख रहा है, वैसे ये 10 डिस्टेंस है और इसके बाद ये है ना लाइन, समझ रहा है क्या आपको? ये देखो ये 10 डिस्टेंस है, ये 10 डिस्टेंस है, और ये लाइन जो है वो दोनों साइड से देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों 10 डिस्टेंस है साइड से। तो यहाँ से भी 10 अंदर आए हम लोग, यहाँ से भी 10 अंदर। इज इट क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट, हियर यू कैन ऑब्जर्व, इधर से वर्टिकल लाइन है ना। ओके तो ये वर्टिकल लाइन बनाया नहीं हम लोगों ने, यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो आने वाला है ये इधर से आने वाला है। ओके ये डिस्टेंस मतलब कितना है 25, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ओके सो L एंटर, इधर से लाइक दिस आई विल ड्रॉ अ लाइन, TR डबल एंटर एंड ट्रिम दिस पार्ट। ओके ये तो फिर अभी देखो ये ड्रॉ करने के बाद इधर बीच में कहीं पे कुछ लाइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना,
तो ये मेरे को डिलीट करना पड़ेगा. आई विल डिलीट दिस लाइन, दिस इज नॉट विजिबल. ओके, एंड TR डबल एंटर, आई विल ट्रिम दिस लाइन, दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल. ओके, ये अभी ऐसे बना देखो. ओके, ये मैंने पहले ऐसे क्यों ड्रॉ किया था, सो दैट आई कैन गेट द रेफरेंस. ओके, देन इतना होने के बाद क्या करना है देखो. इफ यू ऑब्जर्व दिस लाइन, ये लेफ्ट राइट प्लेन में आएगा, और इफ यू ऑब्जर्व दिस लाइन, ये लेफ्ट प्लेन में आ रहा है. तो ये जब दो प्लेन मर्ज होंगे, यहाँ पे वर्टिकल क्या आने वाला है, एज. सो आई विल सिलेक्ट दिस, CO एंटर, इसको इधर से उठा के इधर कॉपी करो. ओके, एंड देन L एंटर, ज्वाइन दिस. इधर भी एज आएगा, बिकॉज दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. जहाँ पे मर्ज होगा वहां पे क्या आएगा, एज आएगा. नेक्स्ट, दिस इज विच प्लेन, वर्टिकल, और इधर कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल. तो इधर भी एक ऐसा आने वाला ना वर्टिकल लाइन. सो अगेन सिलेक्ट दिस, CO एंटर, इधर से उठा के इधर कॉपी करो, एंड देन L एंटर. फ्रॉम हियर आई विल ज्वाइन, ड्रॉ अ लाइन, चेंज द प्लेन F5, और ये पूरा इधर तक आएगा. ओके, इट विल बी लाइक दिस, पूरा एंड तक है ना. ओके, इज इट क्लियर. ओके, और कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या. सो बैक साइड ऑल्सो देर विल बी एन एज ना. सो व्हाट आई विल डू, L एंटर, फ्रॉम हियर आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. थोड़ा इधर तक, इधर रुकना नहीं है, थोड़ा आगे लेके जाने का, एंड देन ट्रिम दैट, TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट. ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्लॉट. ये दिख रहा है, दिस स्लॉट, द डायमेंशन इज 35 and 20. So this slot is tricky and it is on this inclined plane. तो ये जो स्लॉट का जो डायमेंशन है ना, ये 30 और 20, ये टॉप व्यू में. इंक्लाइन प्लेन पे दिस डायमेंशन इज नॉट 20. इंक्लाइन डायमेंशन 20 नहीं है. टॉप प्लेन में डायमेंशन, सॉरी, इंक्लाइन प्लेन पे डायमेंशन 35 नहीं है, इट इज ऑन टॉप प्लेन. समझ रहे हैं आप लोगों को. तो अभी देखो क्या करना है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है अंदर स्लॉट का, 20 है ना. अभी ये आगे से नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, ये स्लॉट देखो इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन इज ओवर हियर. ओके, तो ऑलरेडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी हैव मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 ना. मतलब ये 10 ऑलरेडी आ चुके हैं हम लोग. अभी कितना बाकी है आगे, 10 ही बाकी है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, L एंटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू मूव इनसाइड. कितने डिस्टेंस है, 10. ओके, देन इधर से हम लोग इंक्लाइन प्लेन तक आएंगे, लाइक दिस, स्ट्रीम एक्सेस पार्ट, और फिर इधर से हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन पे जाने वाले. सो L एंटर, आई विल ड्रॉ अ प्लेन. सो प्रेस F5, और ये इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ट्रिम दिस पार्ट. ओके, तो ये जो लाइन है, इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग दैट ये जो 20 दिख रहा है ना, ये 20 वो लाइन पे आने वाला है. अभी देखो इधर से आगे ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 35. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट से आगे जाएंगे 35. सो प्रोजेक्शन लेयर, L एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट 35 एंटर, एंड इधर से ऊपर जाना है, प्रेस F5. कहाँ तक, इंक्लाइन प्लेन तक. देन L एंटर, वी विल मूव ऑन द इंक्लाइन प्लेन इन दिस डायरेक्शन. ट्रिम एक्सेस पार्ट, TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट, दिस पार्ट. अभी जो स्लॉट है वो इधर बनने वाला. सी रिमेंबर, ये जो स्लॉट है ना, इसमें ये जो 35 है और ये 20 है, ये टॉप व्यू में. इंक्लाइन डिस्टेंस इज नॉट 35. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये डिस्टेंस कंसीडर किया है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 20, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज हाउ मच, 35. ओके, अभी देखो क्या करना है. ये होल के लिए व्हाट इज द डिस्टेंस, 20. सो सिलेक्ट आउटलाइन, लाइन, सर्च फॉर मिड पॉइंट. तो ये कितना डिस्टेंस रहेगा, 10, हाफ. वापस इधर से इधर आओ, 20. इतना हुआ. ओके, सेम वे ऊपर भी रहेगा ना. सो आई विल सिलेक्ट दिस होल लाइन, CO एंटर, इसके मिड पॉइंट से उठा के इसके मिड पॉइंट पे रखना. ओके, देन L एंटर, ज्वाइन दिस, एंड देन ज्वाइन दिस. इज इट क्लियर. अभी देखो ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट थ्रू आउट है ना नीचे तक. तो इफ आई सी दिस, ये स्लॉट है ना, इसमें दो प्लेन आने वाला है. ये वाला जो प्लेन है
ये साइड से देख रहे हैं हम लोग, ये साइड से जब देख रहे हैं दिस इज वन प्लेन, एंड जब ये साइड से देखेंगे ये एक प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पे यहाँ पे एक एज आने वाला है। ओके, सो एल एंटर फ्रॉम हियर आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल एज, थोड़ा सा आगे तक जाना है और फिर ट्रिम करना है, टी आर डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट, एस्केप, सिलेक्ट दिस, डिलीट दिस। इज इट क्लियर? Okay, now if I turn off projection layer, we can see the object. Let me check if it is proper. So if you observe, this edge will not be there. Can anyone tell me why? Because ये देखो, ये पूरा एक ही प्लेन है ना, यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये लाइन नहीं आने वाला। अगर यहाँ से ये साइड में भी कुछ ऑब्जेक्ट होता तो चेंज ऑफ प्लेन होता, तो दिस लाइन विल नॉट बी देयर एंड ये ड्राइंग ऐसे बनेगा। Is it clear? So this is the end of the problem. अभी क्या करना रहता है? Once this is drawn, you can keep this like this, और इसका जो PDF है इसको बाजू में रखो ऐसे, and then you can verify each and every feature. ये drawing इसको ऐसे रखा, इधर रखा, and now what you can do, you can analyze. ये question देखो, ये front view top view देखो और इधर verify करो. You will understand all the things. Is it clear?